we are going to discuss the two traversal algorithms for the graphs. One is called the breadth first search, and the second one is called the depth first search. So, first of all, we need to define what is traversing. Traversing is one of the basic operations on the data structure. And what is the definition of the traversal is processing or visiting each element of the data structure exactly once. I repeat, processing or visiting each element of a data structure exactly once. यानी आप किसी भी एलिमेंट को छोड़ नहीं सकते हैं या किसी भी एलिमेंट को दो बार प्रोसेस नहीं कर सकते हैं in terms of traversing. One of the best examples of traversal is let us suppose if we have a set of 5000 students और उनके मैथ में कुछ मार्क्स आए हैं and a decision has been taken to give 3 marks as you can say extra marks to all the subjects or all the students, then applying the operation +3 to all the students is a traversal operation. आप किसी भी स्टूडेंट को छोड़ नहीं सकते हैं और किसी भी स्टूडेंट को दो बार ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते हैं +3. So this is the best example of what is the meaning of traversing. So first of all, we are going to do study is called the breadth first search. Traversing in case of you can say graph is much more complicated than you can say traversing in a stack, queue, linked list, or you can say array. The reason being is there exist multiple paths through a tree. For example, through a graph. If this is, let's say, a graph, as you can see, so many paths that exist. So let's say if I start from here, if it is a linear data structure, then I know exactly that there is a single element before this element and there is a single element after this element. So movement is easy. But when I consider this particular node, which is the next adjacent node to this node, then there are 3 candidates, 1, 2, and 3. So which one should I process? That is a decision. After that, if I decide to process 1, should I go back to 2 or should I go back to 4? Should I continue with 4? That is another decision. Then I need to maintain which are the nodes which have been processed and which are yet to be processed. So all these decisions make it very complicated for implementing the traversal on the graph. So we are going to study 2 techniques for the same. One is called breadth first search and the other one is called depth first search. Breadth first search in every step searches the entire breadth of a node. That means जब हम एक नोड से आगे को बढ़ते हैं तो we will process or traverse all the neighboring nodes of the first node, and then we will pick up the first node and process its neighboring nodes and the neighboring nodes of the second. So हम लोग डेप्थ में नहीं बल्कि ब्रेड्थ में सोचते हैं. Which data structure we are going to use to implement the breadth first search is queue. हम लोग queue data structure को use करेंगे to implement the concept of breadth first search. Before we start with the breadth first search, please focus on this particular table that is given in here. It shows that each node in the graph can have only 3 status values. जब हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे तो हर नोड विद इन द ग्राफ का स्टेटस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, विच इज नोन एज द इनिशियल स्टेट ऑफ द नोड.
please remember our first step will be to set the initial state of all nodes is equal to 1. उसके बाद जिस नोड से हमने स्टार्ट करना है हम लोग उस नोड को क्यू के अंदर इंसर्ट कर देते हैं एंड वी चेंज द स्टेटस इज इक्वल टू 2. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटस इज इक्वल टू 2? इसका मतलब ये है कि द नोड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज इनसाइड द क्यू बट इट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड. What is the status is equal to 3? Status is equal to 3 means that the node has been removed from the queue and it has been processed. तो हमने करना क्या है, हमने ensure करना है कि सभी की सभी nodes का जो status है is equal to 3 हो जाए at the end of the traversal operation. और हमने किसी भी नोड को प्रोसेस नहीं करना है जिसका स्टेटस ऑलरेडी 3 है. तो लेट्स हैव अ लुक एट द एल्गोरिथम. सो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर यू कैन से ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. द फर्स्ट स्टेप इज कि आप सारी की सारी नोड्स का स्टेटस इज इक्वल टू 1 कर देंगे. सो व्हाट विल बी द इनिशियल स्टेट ऑफ ऑल द नोड्स? द इनिशियल स्टेट ऑफ ऑल द नोड्स विल बी 1. तो अब हम लोग उठाएंगे फर्स्ट नोड को, लेट अस सपोज दैट नोड इज ए, और हम लोग उस नोड को इंसर्ट कर देंगे इनसाइड द क्यू. ओके, और दूसरा काम क्या करेंगे, हम लोग उसकी स्टेट को चेंज करके 2 कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द वेटिंग स्टेट. नाउ वी आर आफ्टर दीज 2 स्टेप्स वी आर गोइंग टू रिपीट द स्टेप नंबर 4 एंड 5 आइटरेटिवली. हमने करना क्या है, हमारे क्यू के फ्रंट में से एक नोड को रिमूव करना है, उसको प्रोसेस करके उसकी स्टेट को 3 चेंज कर देना है. इसका मतलब क्या है, जो भी नोड क्यू के फ्रंट में पड़ी है हमने उसको प्रोसेस करने के बाद उसका स्टेटस 3 कर देना है, विच मीन्स दिस नोड हैज बीन प्रोसेस्ड. व्हाट इज द स्टेप नंबर 5? स्टेप नंबर 5 इज कि हम नोड नंबर के जिसको हमने प्रोसेस करके उसका स्टेटस 3 सेट किया है, उसकी जितनी भी एडजेसेंट नोड्स हैं, एडजेसेंट नोड्स क्या होती हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस नोड के साथ या उस नोड से पाथ एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट पाथ, उन सभी को क्यू के अंदर इंसर्ट करना है और उनका स्टेटस 2 कर देना है. ये हम कब तक करेंगे, जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है. So that is the end of this algorithm, which is called the breadth first search. Now what we are going to do, we are going to let's say implement the breadth first search on this particular graph with the help of an example. हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और breadth first search को यहाँ पर implement करेंगे. So how many nodes we have? We have a total of 7 nodes. So the total number of nodes we have 7. What is the step number 1? The step number 1 is to set the status of all nodes is equal to 1. So how many nodes we have? A, B, C, D, E, F, G, and H. The status of all the nodes is 1. इसका मतलब क्या है, our first step has been done. हमने सभी नोड्स का स्टेटस 1 सेट कर दिया है. अब हमने क्या करना है, हमारी क्यू है, उस क्यू के अंदर फर्स्ट नोड को इंसर्ट कर देना है और उसके स्टेटस को चेंज कर देना है 2. दैट्स इट. अब हम लोग स्टेप नंबर 4 एंड 5 को रिपीट करेंगे, जिसमें हम लोग एक एक नोड को क्यू से बाहर निकालेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और उसकी नेबरिंग नोड्स को क्यू के अंदर डाल देंगे. तो हमारी फर्स्ट नोड कौन सी है, ए. हम लोग ए को रिमूव करेंगे, ए को प्रोसेस करेंगे और उसके स्टेटस को 3 कर देंगे, दैट मींस दिस नोड हैज बीन प्रोसेस्ड. अब हमने क्या करना है, क्यू के अंदर इसकी एडजेसेंट नोड्स को डाल देना है. तो ए से हम लोग कहां पर जा सकते हैं, सिर्फ बी पर जा सकते हैं. देयर इज ओनली वन एज फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोग बी के स्टेटस को 2 कर देंगे. नाउ अगेन रिपीट द स्टेप. क्यू के फ्रंट में क्या पड़ा है, बी. बी को रिमूव कीजिए, बी को प्रोसेस कीजिए और बी के स्टेटस को चेंज करके 3 कर दीजिए.
अब बी से जितनी भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनको स्टैक के क्यू के अंदर डालना है। तो बी के एडजेसेंट कौन है, एक डी है और एक सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डी को क्यू में डाल देंगे और एक सी को क्यू में डाल देंगे और इन दोनों के स्टेटस को 2 कर देंगे। तो द नेक्स्ट टू बी प्रोसेस्ड इज डी, और डी के स्टेटस को क्या कर देना है हमने, 3। ठीक है, अब चेक कीजिए आप डी से कहां कहां जा सकते हैं। आप डी से सी जा सकते हैं, लेकिन सी को हम लोग स्टैक के अंदर, क्यू के अंदर नहीं डालेंगे, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इनसाइड द क्यू। ए को भी नहीं डालेंगे, इट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज जी, तो हम लोग जी को क्यू के अंदर डालेंगे और इसका स्टेटस जो है चेंज करके 2 कर देंगे। नेक्स्ट इज सी, वी विल प्रोसेस सी, सेट इट स्टेटस टू 3। अब देखेंगे कि सी से कहां कहां जा सकते हैं। सी से सिर्फ ए जा सकते हैं, ए ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। द नेक्स्ट नोड टू बी प्रोसेस्ड इज जी, हम लोग जी को प्रोसेस करेंगे और जी के स्टेटस को 3 कर देंगे। अब हमने देखना है कि हम लोग जी से कहां कहां जा सकते हैं। जी से हम लोग एफ पर भी जा सकते हैं और ई पर भी जा सकते हैं। तो हम लोग एफ और ई दोनों को क्यू में डाल देते हैं और एफ का भी स्टेटस 2 और ई का भी स्टेटस 2 कर देंगे। अब एफ को प्रोसेस किया है यहाँ पर, तो दिस इज इट, व्हाट वी गेट इज एफ हैज बीन प्रोसेस्ड, इट्स स्टेटस हैज बीन चेंज्ड। एफ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एफ से सिर्फ हम लोग बी को जा सकते हैं, बट बी हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड, तो कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टू बी प्रोसेस्ड इज ई, और हम लोग उसका स्टेटस भी 3 कर देंगे। अब ई से कहां कहां जा सकते हैं, ई से सिर्फ एफ को जा सकते हैं, बट एफ हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। सो दैट मीन्स नाउ यू कैन सी दैट योर क्यू इज empty, and once the queue is empty means you have reached the end of the algorithm. You can see that the status of all the nodes is 3, which means all the nodes have been processed, and in which order they have been processed, the order has been given here. So that is the way the algorithm works. What is the complexity of this algorithm? The complexity of this algorithm is V plus E. That means vertices plus edges. This is the complexity of this particular algorithm. So now we will see what is the depth first search. What is the meaning of depth first search? So this is the example जो हमने किया है, आप देख सकते हैं कि notes में वो दिया हुआ है. So when you will have these notes, you can go through these as well. So the next is depth first search. Depth is different from the breadth, because breadth के अंदर क्या होता है कि आप सारी की सारी adjacent nodes को प्रोसेस करते हैं and then you move forward. लेकिन डेप्थ में क्या होता है कि डेप्थ में आप सबसे पहले एक पाथ को प्रोसेस करते हैं एंड देन यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट. तो मैं एक ग्राफ यहाँ पर आपको एक बना देता हूँ. सो इफ यू look at this graph, this is somewhat looks like you can say a tree, but अब आप ध्यान से देखिए, this is our node जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. This is node number 1, 2 and 3 which are adjacent to this node, क्योंकि डायरेक्ट एज है to 1, 2 and 3 from the starting node. अब ब्रेड्थ में क्या होता था कि जब आप फर्स्ट नोड को प्रोसेस कर देते हैं तो उसके बाद 1 को प्रोसेस करने के बाद 2 एंड देन 3. लेकिन यहाँ पर डेप्थ में ऐसा नहीं होगा. जब आप लेट अस सपोज फर्स्ट नोड के बाद 1 के पास आए तो आप उसके एक पाथ को पूरे का पूरा प्रोसेस करेंगे, फिर बैक ट्रैक करेंगे और अगर कोई दूसरा पाथ है तो उसको प्रोसेस करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पाथ. इज इट क्लियर? और जहां पर भी बैक ट्रैकिंग आ जाती है तो विच डेटा स्ट्रक्चर दैट वी यूज इज कॉल्ड स्टैक, बिकॉज स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. अगर ये वाला पाथ लास्ट था जहां से डाइवर्जन होती है तो हम लोग यहीं से मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट
path. So what is depth first search? Depth first search is that we follow the first part till the complete depth of that, and then we backtrack to follow the second path, third path, and so on. Which data structure we use for the same? We use the stack data structure for implementation of the depth first search. So again, there will be 3 states for all the nodes. The step number 1, हम सभी nodes की state को 1 कर देंगे. फिर जब हम किसी नोड को पुश करेंगे स्टैक के अंदर तो उसके स्टेटस को 2 कर देंगे, एंड आफ्टर दैट हम उसको 1 by 1 पॉप करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसेस द सेम एंड change the status to 3. So let's have a look at the algorithm. Absolutely same, कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन जहां पर आपने क्यू लिखा था वहां पर अब स्टैक आ जाएगा. इनिशियलाइज ऑल द नोड्स विद स्टेटस इज इक्वल टू 1. हमारी जो फर्स्ट नोड है उसको स्टैक के अंदर पुश करेंगे एंड चेंज इट्स स्टेटस इज इक्वल टू 2. We are going to now repeat the step 4 and 5 till the stack becomes empty. करना क्या है? हमने पॉप करना है स्टैक टॉप एलिमेंट को स्टैक के, उसको प्रोसेस करके उसके स्टेटस को 3 कर देना है, एंड देन पुश all the nodes in the adjacent list into the stack. So the only difference between the breadth first search or depth first search is the use of the data structure. Breadth first search में हम लोग queue use करते हैं, तो depth first search में हम लोग stack use करते हैं. So this is the graph that is available with us. The you can say method that we are going to follow is the depth first search. So let us start with it. So to begin with, how many nodes do we have? We again have 7 nodes. So the node number are A, B, C, D, E, and F. Step number 1, we will set the initial state of all the nodes is equal to 1. What we are going to do after that, हम लोग स्टैक के अंदर सबसे पहली नोड को पुश करेंगे. पुश करने के बाद हम लोग उसके स्टेटस को चेंज करके 2 कर देंगे. तो ये हमारा स्टैक है. स्टैक के सबसे ऊपर ए है, हमने उसको स्टैक के अंदर डाल दिया है और उसके स्टेट को चेंज करके 2 कर दिया है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिमूव ए फ्रॉम द स्टैक. स्टैक में से रिमूव कर देना है, इसकी स्टेटस को चेंज करके 3 कर देना है और इसको प्रोसेस कर देना है. उसके बाद आप चेक कीजिए कि ए के एडजेसेंट कौन कौन सी नोड्स हैं. सिर्फ एक ही नोड इसके एडजेसेंट है, दैट इज बी. तो जब हम लोग बी को स्टैक के अंदर पुश करेंगे तो हम लोग उसके स्टेटस को चेंज करके 2 कर देंगे. नाउ अगेन रिपीट द स्टेप्स. हम लोग बी को स्टैक में से पॉप करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे एंड वी विल पुश इट इनटू द प्रोसेस लिस्ट कि ये प्रोसेस हो गया है. अब बी के कॉरेस्पॉन्डिंगली या उसके एडजेसेंट कितनी नोड्स हैं उनको स्टैक के अंदर डालेंगे. उसके एडजेसेंट है सी, ई एंड डी. तो सबसे टॉप पर क्या है? डी. तो हम लोग बी से कहां जा सकते हैं? सी, ई एंड डी. तो हम सी का स्टेटस 2 कर देते हैं, डी का स्टेटस भी 2 कर देते हैं और ई का स्टेटस भी 2 कर देते हैं. नाउ रिमूव द एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक विच इज डी. हम लोग उसको प्रोसेस कर देंगे और यहाँ पर भी उसका स्टेटस चेंज कर देंगे. अब आप देखिए कि आप डी से कहां जा सकते हैं. आप एक डी से ई जा सकते हैं, लेकिन ई ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, और डी से आप जी जा सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, जी को अब स्टैक के अंदर डाल देते हैं और इसका स्टेटस जो है, इसका जो स्टेटस है वो 1 से 2 कर देते हैं. नाउ रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक. उसको प्रोसेस कर दीजिए और स्टेटस चेंज कर दीजिए. क्या आप जी से कहीं जा सकते हैं? आप जी से कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं. तो दैट मीन्स नो एलिमेंट विल बी इंसर्टेड इनटू पुश्ड इनटू द स्टैक. नेक्स्ट इज
ई, तो ई को प्रोसेस कीजिए और ई के स्टेटस को चेंज कर दीजिए। अब आप देखिए, आप ई से कहीं जा सकते हैं, आप ई से एफ जा सकते हैं, तो एफ एंड एफ कम्स ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। रिपीट द स्टेप्स। एफ को रिमूव कीजिए, एफ प्रोसेस हो चुका है, स्टेटस 3, एफ से कहीं नहीं जा सकते। लास्ट इज सी, सी को निकालिए, सी को प्रोसेस कीजिए और उसका चेंज करिए। नाउ यू कैन सी दैट द स्टैक इज एम्प्टी, all the node status has been set to 3. This is the order of the processing. That means we have reached the end of depth first search, and the complexity of this algorithm is also the same, that is B plus E. So with this, we come to the end of our two main algorithms, traversal algorithms for the graph, that is called depth first search and breadth first search.